ओके गाइस, सो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट, आई डोंट नो मिड टर्म में या कब, बट इट वाज एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी एंड कि कब ऑर्डर करना चाहिए और कितना ऑर्डर करना चाहिए. सो दिस सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री डिपेंडिंग ऑन, उसमें दो कॉस्ट होते थे, कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज एवरी टाइम मैं इन्वेंट्री मंगाती हूँ तो मेरा कितना खर्चा आता है, एंड कैरिंग कॉस्ट वाज इन्वेंट्री रखने का खर्चा कितना आता है. ठीक है, ये दो टाइप के कॉस्ट ये करके डिटरमाइन होता है कि कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए और कब कब ऑर्डर करना चाहिए. नाउ दिस सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू कैश, बिकॉज कैश रखने का भी एक कॉस्ट होता है और कैश बार बार लेने का भी एक कॉस्ट होता है. ठीक है, सो दिस इज टू डिटरमाइन द आइडियल वैल्यू ऑफ कैश दैट यू शुड कीप. तो उसके लिए एक बंदा है मिलर, और उसका एक मॉडल है जिसके हिसाब से डिटरमाइन होता है हाउ मच कैश इज टू बी केप्ट. इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक है फ्लोर, which is your minimum level of cash that you need to keep. One is ceiling, which is the highest level of cash you should be keeping. उसके ऊपर तुम्हारा cost of borrowing बहुत high हो जाएगा. And one is your target cash balance, which is the ideal level of cash you need to keep. Now, uh, spread is the difference between your highest and your lowest cash balance. ठीक है, that is your spread, L minus S. अभी इन सब के लिए ना there is an arbitrary, मतलब तुम्हें mathematical formula follow करना है to find that ideal cash balance. I'll just help you learn the formula and I'll help you कि Excel में कैसे डालना है. But there's no point in getting into the mathematical derivation of that formula. It is the same as that average inventory वाला calculation. ठीक है, so the question starts with standard deviation of the, I'm just going to pause the recording, यहाँ बहुत आवाज हो रही है. Okay, so given a standard deviation of the daily cash requirement is rupees 10,000. This is how much your cash का requirement will vary in a day. SD is that statistical, same जो हमने सीखा है. Each time it has to withdraw cash, it has to incur a cost of rupees 12. This is the same as every time it has to order inventory. So this becomes your transaction cost T. This is your SD. Its cost of capital compounded daily is around 15%. Now it has a set floor of rupees 20,000. So this is your floor, which is marked by a L, lower limit. ठीक है. So now the question is target cash balance क्या है, ceiling क्या है. Okay, I'll come to the other questions as we go on solving. So the floor is basically my minimum, that I have. Okay. Yes. So standard deviation दिया गया है 10,000, transaction cost 12. Now see this R that is given, the cost of capital, this is given as 15%. Now this needs to be converted into a daily cost. Okay, a daily rate. 15% साल का है तो डेली का कितना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजिन कि 1 रुपी होता अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, तो that is raised to T, which is the time period, which in this case is 1 year. अभी because हमको डेली का चाहिए तो we need 360th fraction of 1 year. Okay, that's why we, instead of raising 1 plus r to 1, we are raising it to 1 plus r raised to 1 upon 360. ठीक है, so we are finding out daily. तो 360th रूट ले रहे हैं अपन और फिर -1 वापस करता है क्योंकि प्रिंसिपल हटाना है हमें. तो ऐसे करके हमको डेली का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता है 0.0388%. रोहन ये क्लियर हुआ क्या, समझा क्या ये डेली कैसे निकाला? Okay, so don't forget to do this. Don't use directly 15%. Standard deviation always needs to be a daily figure, and this R that you use, capital R, needs to be a daily figure. ठीक है, अभी फ्लोर उन्होंने दिया हुआ है 20,000. अब आता है सम का किकर, which is this gorgeous formula. तो अब ये जैसा है फॉर्मूला हमें रटना है. I'll make it simpler by breaking it down. ठीक है, तो स्टार्ट विथ योर सेंट्रल न्यूमरेटर, एक एक पार्ट बिल्ड करते जाते हैं. तो ये जो पार्ट है इस पे फोकस करते हैं, which is 3 into transaction cost into standard deviation square. Standard deviation square is variance. So this is 3
into, ये न्यूमरेटर याद रखो, 3 into transaction cost into standard deviation square. This thing is divided by the denominator, which is again simple, 4 into R. R is that daily compounding जो अपन ने निकाला है, ये 0.03. ठीक है. So numerator 3 into T into SD square upon denominator 4 into R. अब ये पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्यूब रूट निकालना है. सो इट्स रेज टू 1/3. ठीक है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्यूब रूट निकालो. इसके लिए इट्स रेज टू 1/3. नाउ दिस क्यूब रूट, दिस एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 3. दैट्स द फॉर्मूला. ठीक है. I will repeat the whole thing again. Numerator 3 into transaction cost into standard deviation square divided by 4 into R. This whole thing का cube root, इसके लिए raised to 1/3. Now this cube root, this whole thing is divided in, is multiplied by 3. ठीक है. This is the formula. अब Excel में ये formula input करते टाइम कृपया बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए ब्रैकेट्स पे. So I'll construct the formula in front of you. ये जो मेरा C column है ना, उसमें formula देख देख के I'll construct it so that you know where to put the brackets. So you start with your central basic figures. That's how you know कहाँ कहाँ brackets डालते हैं. तो पहले मैं मेरे न्यूमरेटर पे एक ब्रैकेट डालना चालू करूंगी बिकॉज मुझे पता है वो पहले फुल कैलकुलेट होना मांगता है. तो 3 into my transaction cost into स्टैंडर्ड डिविएशन. अभी स्टैंडर्ड डिविएशन को मेरे को स्क्वायर करना है, तो मैं पहले उसमें एक ब्रैकेट डालती हूँ, उसको स्क्वायर करती हूँ और अब इस पूरे चीज को डबल ब्रैकेट लगा देती हूँ. ठीक है. तो पहला ब्रैकेट होगा SD वाला स्क्वायर, फिर ये पूरी न्यूमरेटर पे एक ब्रैकेट लग जाएगा. अब उसको मेरे को डिवाइड करना है बाय द डिनोमिनेटर. अब पूरा डिनोमिनेटर के लिए मैं एक ब्रैकेट बना देती हूँ. 4 into मेरा कैपिटल R, ये रहा. अब मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ. अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको मिला के मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट दे देती हूँ. तो अब ये एक ब्रैकेट बन गया डिवाइडेड बाय 1/3. इफ यू नोटिस 1/3 के लिए भी डिनोमिनेटर मैंने ब्रैकेट्स लगाए. रेज टू आएगा ना, रेज टू 1/3. सॉरी डिवाइडेड नहीं, रेज टू 1/3. ठीक है. नाउ ये पूरी चीज को वापस ब्रैकेट्स लग गए बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3. अभी आई एम नॉट श्योर फॉर्मूला करेक्ट लगा है कि नहीं. फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम प्रेसिंग एंटर. यप, परफेक्ट लगा. ठीक है. सो इफ यू सी, टेक द स्मॉलेस्ट बिट्स, उसमें ब्रैकेट लगाते जाओ. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्यूब, देन द मल्टीप्लिकेशन. एंड डोंट फॉरगेट जहां फ्रैक्शंस है लाइक 1/3 एंड ऑल, तो ईच फ्रैक्शन को भी तुम्हें ब्रैकेट में डालना है. अगर रेस टू कर रहे हो तो वो रेस टू वाली चीज को भी, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन रेस टू 2 हो रहा है, तो उसको भी पहले इनसाइड वाला ब्रैकेट देना है. तो ये रटना होगा फॉर्मूला, बट फॉर्मूला रटना इनफ नहीं है. यू नीड टू नो एक्सेल में ब्रैकेट्स कैसे अप्लाई करना है. ये पार्ट रीवॉच कर लेना. ठीक है. सो दिस गिव्स मी द S व्हिच इज माय स्प्रेड. ठीक है. अब अगेन टारगेट कैश बैलेंस का ये फॉर्मूला है, लोअर लिमिट जो तुम्हारा फ्लोर है प्लस स्प्रेड डिवाइडेड बाय 3. अब सी, इट्स एन आर्बिट्री मॉडल. ये मिलर ने बोला है कि इतना कैश रखो, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है. It's just the formula L plus S divided by 3. ठीक है. So this is your target. This is your ideal cash balance. Okay. And your highest cash balance, जैसे कि बोला था, ceiling plus your spread. तो ये 59,000 हो गया. अब वो क्या बोलते हैं कि if your cash reaches the ceiling, how many rupees out of it should you convert to securities? मतलब वो बोल रहा है कि मेरा कैश अभी सीलिंग हिट कर गया है, तो I should sell, I should buy securities so that मेरा कैश कम हो जाए, so that I'm parking that cash. तो अगर मेरा सीलिंग 59 है, तो मुझे कितना कैश निकाल देना चाहिए? I should remove just enough to come back to my target. So that's why the formula is ceiling minus target. तो 26,000 के सिक्योरिटीज में खरीदूंगी तो उतने का मेरा कैश निकल जाएगा, और 59,000 का जो कैश था
वो गिर के टारगेट कैश पे 39 पे सॉरी हाँ टारगेट इज 33 पे आके रुक जाएगा. एंड इफ कैश बैलेंस रीचेस द फ्लोर तो उसको सिक्योरिटीज बेच डालने चाहिए सो दैट ही गेट्स कैश इन हैंड. तो अगर मेरा फ्लोर मीन 20,000 ही कैश बचा है मेरे पास, तो आई नीड टू अर्न कैश टू रीच अप टू 33,000. तो उसके लिए उसका डिफरेंस विच इज 13,000 उतने का सिक्योरिटीज मेरे को बेचना पड़ेगा ताकि उतना कैश मेरे हाथ में आ जाए. So that is the concept of floor, ceiling, spread and target cash balance. किकर तो है बस ये फॉर्मूला. बाकी आई थिंक ये शीट के हिसाब से भी all should be able to solve. Any doubts, Rohan? So like the target is basically the optimal amount that I should have in my accounts, right? Yes. I mean that is the amount I should maintain. Perfect. Okay, cool. ठीक है. Dude, मैंने record किया कि नहीं? हाँ, okay, it's recorded.